पेज नंबर 181 निकालना है। पेज नंबर 181 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना शुरू करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बड़ा आवाज आ रही है। Is it Kangaroo Limited, a Pakistan-based company, is preparing its financial statements for the year ended 31st December 2017. Following transactions were carried out during the year. तो थोड़ा सा IS-21 वगैरह याद है? मिक्स आ रहा है सर। सबसे पहले फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस लिखेंगे। KL purchased an investment property in United States for US dollars 2.6 million. 10% advance payment was made on 1st May 17 and the 70% payment was made on 1st July 17 on transfer of the title and possession of property. The remaining amount was paid on 1st August 17. On 1st September 17, KL rented out this property at an annual rent of 0.24 million US dollars for 1 year and received full amount in advance on the same date. KL uses fair value model for its investment property. On 31st December 17, an independent valuer determined the fair value of the property was 2.5 million US dollars. Following spot exchange rates are available. US dollar against rupees दिए मुझे 1st May से 31st December. एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कौन सा स्टैंडर्ड है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और साथ IS-21 मिलाया था। पार्ट 20 का क्या इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। On 1st May 17, KL acquired following equity investments. Investment A, investment B. Purchase price, transaction cost, total. Investment A was designated as measured at fair value through profit and loss, whereas investment B was irrevocably elected at initial recognition as measured at fair value through other comprehensive income. Page number 65 निकाला। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है, अमोर्टाइज कॉस्ट की तो स्टोरी ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट ए को क्या डेजिग्नेट कर दिया गया है फिर वेरी थ्रू प्रॉफिट लॉस एंड दूसरी जो प्रॉपर्टी है सॉरी दूसरी इन्वेस्टमेंट है फिर वेरी थ्रू अदर कंपनी। तो पेज 165 है मेरे दो टेबल्स हैं। In October 17, KL earned dividend of 12 million and 9 million investment A and B respectively. 20% of investment A and 30% of the investment B was sold for 23 million and 15 million respectively. Transaction costs were paid on these sale transaction. Selling expense है
ये आंसर मैं जब कहूँगा तब देना। ओके किस चीज का? On 31st December 17, fair values of the remaining investments are given below. Fair values दी हुई सर, transaction cost on disposal दी हुई, net amount दी हुई. Required is prepare all general entries for the year ended 31st December 2017 and then prepare the relevant extracts from the above transaction from KL statement of financial position and comprehensive income in accordance with IFRS. Comparatives and notes are not required. चलो स्पीड अप हो जाएगा, जनरल एंट्रीज करें. Kangaroo Limited sir. Requirement A, general entries for the year ended 31st December 17. दो हिस्से हैं सर. नंबर 1 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस है. नंबर 2 इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है. शुरू करें सर. पॉइंट 1 की एंट्री शुरू करो. एग्जैक्टली इसी तरह की बात उस जमाने में भी हुई थी, तो अब बड़े हो गए आप. तो फर्स्ट डेट बोल दे. नहीं सर, ना सर, इस बात ही नहीं होना. फर्स्ट रेलिवेंट डेट दोबारा ट्राई करें सर. बोला नहीं. 1 May 17 डबल एंट्री सर. एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट. रेट्स नेक्स्ट पेज पे चलेगा आपके पास. थोड़ा साथ साथ डेटा देखा सर. अमाउंट बताया फॉरेन करेंसी में. फॉरेन करेंसी अमाउंट सर 2.6 मिलियन. 10% बना 0.26 मल्टीप्लाइड बाय कौन सा रेट लेना होता है सर? ट्रांजैक्शन डेट पे रेट है सर. रुपीज इन मिलियंस. आंसर आ गया 26 मिलियन रुपीज. खुद बनता है और नजर मोबाइल पे नहीं बन जाता होता है और नजर बन जाता. अपनी मोबाइल के ऊपर कर दो, अगर इजी हो जाएगा. नेक्स्ट डेट से 1 जुलाई 17 डबल एंट्री सर. हाँ जी. अब क्या अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी होगी? 1 मई पे होगी थी यार. तो 1 जुलाई पे कैसे होगी? अभी तो 20% पेमेंट और रहती है. हाँ जी, टाइटल ट्रांसफर होगा. अब सर ये वही एंट्री जो उस जमाने में भी क्या थी. परसेंटेज की जगह जरा एक दफा दोबारा फाइनल रिवाइज करने वाला. पहले वर्किंग करवा दूंगा. पेमेंट कितनी की होगी आपने इस दिन? पेमेंट कितनी की होगी? 2.6 मिलियन इंटू 70%. 1 जुलाई का रेट होना. ये जो 2.6 मिलियन का 70% है, ये आपको 105 पे ही पड़ रहा. 191.1 एडवांस खत्म हो जाएगा. किस अमाउंट वाला एडवांस खत्म होगा? वो आपको 100 पे ही पड़ा एडवांस. एक्सचेंज रेट उसका 100 ही था.
वो एडवांस जो है वो 105 पे आपको पे करना पड़ा या 100 पे हो गया हुआ? और पेएबल बनेगा, रिमेनिंग कैलकुलेट करनी कितना परसेंट बनेगा? 10 पहले दिया था, 70% बाद में दे दिया, बाकी 20% फ्यूचर में देना है। तो 2.6 इंटू 20%। अब ये लाइबिलिटी इनिशियली कितने पे अभी रिकॉर्ड होगी, बाद में इसके सेटलमेंट पे हो सकता है आपको एक्सचेंज गेन या लॉस हो रहा है। 54.6 तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बैलेंसिंग फिगर के तौर पर डेबिट हो जाएगी। ये हम स्ट्रेट अवे 2.6 इंटू 105 क्यों ना कर रहे हैं? नहीं रेट मतलब चलें लिख लें, लेकिन सही रिवाइज कर लें। क्या आखिर मसला है कि हम 2.6 इंटू सीधा ही करें 105? हाँ जी नहीं, हमें सारी प्रॉपर्टी 105 वाले रेट पे नहीं पड़ी, उसमें से जो 10% अमाउंट है वो हमें 100 रुपीज पे ही पे करनी पड़ी है। तो एक बैलेंस फिगर आएगी सर, ऐसा से इन सब फिगर्स का एक सम। यही तरीका होता है सर साथ साथ चीजें रिवाइज करने का यार। हमारे यार स्कूल में तो कभी लेट नहीं हुआ यार, वहां कभी ऑनलाइन क्लास भी नहीं ली कि मैं लेट हो गया था। यहाँ क्या ऐसी बेबरकती है सर इस क्लास में? कौन सी ऐसी मेरी नहुसत है कि आप टाइम पे नहीं आ पाते? लगता है आपको भी समझ नहीं आ रही है तो काफी सारी, लेकिन नहीं सर ट्राई करूंगा बस उतनी ट्राई करनी जितनी हम मोबाइल उठाने में ट्राई करते हैं, इंशाल्लाह जरूर कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट डेट सर, 1 अगस्त 17। सारी कहानी खत्म हो गई है सर। रिमेनिंग अमाउंट कब पे हुई है सर? डबल एंट्री खुद से लिखा सर, मैं भी लिखा हूँ। जी डी पेमेंट हो रही है 1 अगस्त को। अब क्या ढूंढना पड़ेगा? एक्सचेंज रेट हो गया 108, पेमेंट हो गई 56.16। इसे कैसे बोला करते थे यार, वाइसी करनी चाहिए। इसे कैसे सोचा करते थे? कितने वाली लायबिलिटी कितने पे सेटल हो रही है? 54.6 मिलियन पे जो लाइबिलिटी रिकॉर्ड हुई थी 56.16 मिलियन पे रिकॉर्ड हो रही है। डिफरेंस 1.56। एक्सचेंज लॉस फॉरेक्स एक्सचेंज लॉस, फॉरेक्स लॉस कहाँ जाएगा ये? प्रॉफिट एंड लॉस में ये चीजें फाइनल होनी चाहिए सर, एक्सट्रैक्ट्स बनाने। नेक्स्ट डेट सोच के 1 सितंबर 17। पढ़े जी 1 सितंबर 17 पे रोकने की वजह क्या? दिया है लिया है, एडवांस में ले लिए। कितने अरसे का? 1 साल का। डबल एंट्री सोचें, कैश या बैंक डेबिट, अर्न एंड रेंट इनकम क्रेडिट, सारा ही अर्न है फिलहाल, सारे ही अर्न है। तो फिर ईयर एंड पे सोचेंगे कैश या बैंक डेबिट, अर्न एंड रेंटल इनकम क्रेडिट। मेजरमेंट कैसे करूं? 0.24 इंटू इंटू 110। कितने डॉलर? 0.24 डॉलर, 0.24 मिलियन डॉलर्स इंटू स्पॉट रेट 26.4।
नेक्स्ट 31 दिसंबर 17 पे रुकने की पहली वजह। हाँ, अब दो काम होने हैं ईयर एंड पे। एक तो फेयर वैल्यू मॉडल है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी फेयर वैल्यू मॉडल, ठीक है। और सेकेंडली अर्न इनकम ने इनकम बनना है, और एक तीसरी चीज आप भूल रहे हैं, डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज होना है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, फाइनल करने सारी बात। सबसे पहले क्या करना है, रेंटल इनकम बनाना है। अच्छा सीरियस है, यहाँ एक अच्छा सा इशू आ रहा है, इसको भी रिजॉल्व करना है। डेली बेसिस पे सर ये जो पिछले अगले काम में दे रहा हूँ कंपल्सरी है करना। जी सर, एंट्री रेंटल इनकम अब डेबिट होनी है, रेंटल इनकम डेबिट एंड रेंटल इनकम क्रेडिट। कैसे? अब हमें किसी रेट की जरूरत है, एक्सचेंज रेट की, पहले तो ये फैसला करें। अब मेरा ख्याल है किसी एक्सचेंज रेट, अब अगर रेट्स बदलते भी जा रहे हैं तो क्या 26.4 मिलियन इनकम बनना? अब रेट बदलने से क्या होगा, हमारे डॉलर्स भी नहीं, रुपए भी नहीं। अब बस जो 26.4 मिलियन रुपए हैं, इन्हें इनकम बनना है। कितने महीनों की? कैसे? 26.4 डिवाइडेड बाय पूरे साल के पैसे एनुअल और मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8.8। कुछ अच्छे अच्छे सवाल मैं एक्सपेक्ट करूंगा, लेकिन मुझे बात पहले पूरी कर लेना है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट डेट, अच्छा एक दफा जरा डेप्रिसिएशन वाला लिखना जरा। 31 दिसंबर 17 नो डेप्रिसिएशन, फेयर वैल्यू मॉडल। फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जितनी छोटी छोटी चीजें कम से कम पिछली आ रही हैं उनका जरा रीजनेबली आइडिया होना चाहिए। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करना था। ये कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट 71.7 जिस अमाउंट से रिकॉर्ड किया था उसे फर्स्ट एंट्री देखें, फेयर वैल्यू लगवाएं। अब आपकी ये प्रॉपर्टी जो है किसी फॉरेन कंट्री में, अकॉर्डिंगली पहले जो फॉरेन करेंसी दी हुई है उसे लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना। 2.5 मिलियन 2.5 मिलियन इंटू 290 मिलियन रुपीज। डिफरेंस 18.3 क्या है? फेयर वैल्यू गेन है, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला है। हाँ जी, इसमें होगी अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम की स्टोरी नहीं है, डबल एंट्री हो जाए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट बाय रुपीज 18.3 मिलियन। बिल्कुल ठीक है, प्रॉफिट लॉस लिखो 18.3। प्रॉफिट एंड लॉस मींस अदर इनकम, अदर इनकम। जी रिमेनिंग लाइफ गेन ले, रिमेनिंग लाइफ गेन ले। अच्छा लाइबिलिटी की बात तो खत्म है, इसकी तो नहीं रिमेनिंग लाइफ गेन। नेक्स्ट ईयर अप टू 90 डेप्रिशिएट होगा। मैंने पहले ये खत्म, ये किस चीज की रीमेजरमेंट, जरा ढूंढे जरा एक मिनट। आपके भी जहन में जो चीज आ रही है, अच्छा होगा, यही मैं चाह रहा था, ये वाला जहन में आ रहा था। पेबल की रीमेजरमेंट, पेबल किधर गए?
पेबल नहीं है, इस वक्त पेबल की रीमेजरमेंट नहीं है। ये रीमेजरमेंट आता है यार, बैलेंस शीट और पेबल्स री करना, रिसीवेबल पेबल्स रीमेजर होते हैं या हर एसेट मेजर होता है? अगर फॉर एग्जांपल आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे होती, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी कॉस्ट मॉडल पे होती और फॉरेन करेंसी में, तो क्या आप इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भी रीमेजर करते? अगर आपने स्टॉक खरीदा होता, आपने स्टॉक खरीदा होता किसी फॉरेन करेंसी में और वो स्टॉक बचा होता ईयर एंड पे, तो वो भी रीमेजर होता है? सिर्फ क्या रीमेजर होता है? ये पेबल और रिसीवेबल्स रीमेजर होते हैं। अब आ जाएगा यार? नहीं, तो पेबल रिसीवेबल वर्ड ज़हन में रख के फिर आप ही बताएं, ये आप किसको रीमेजर करवाना चाह रहे हैं? ये पेबल है या रिसीवेबल है? ये कौन सा पेबल? पेबल इन कैश है, सर्विसेज का पेबल है। क्या करेंसी मूवमेंट होने से हमारी इस अनअर्न्ड इनकम की लायबिलिटी पे फर्क पड़ता है? हमने ये पैसे तो नहीं देने, हमें सर्विसेज देनी है, ये पैसे देने हैं। असल में सर ये एक वर्ड था वहां, ये किसी के पास है बोलने मन में, जरा एक दो पेजेस जरा बताना चाह रहा हूँ। तो पांडी आजकल ये जरा सबसे पहले ये रखिएगा दो तीन चीजें। इस क्वेश्चन को जरा करवाने का मकसद ये था कि जरा पुरानी बातें कुछ एक तो रिवाइज भी हो जाए और कुछ फाइनल भी हो जाए। एक छोटा सेंटेंस लिखे पहले, 31 दिसंबर 2017, डेट लिखो। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ unearned income, unearned rental income will be, कैलकुलेट कर देंगे, -26.4 -8.8, क्लोजिंग बैलेंस ये 8 महीनों की होगा ना, 17.6। अब आगे लिखने के से पहले बता दें ये रिसीवेबल है या पेएबल है? नहीं सर जी, पेएबल नहीं, पेएबल तो कैश का एंगल से होता है ना, यकीन है ये लायबिलिटी है, लेकिन कैसे लायबिलिटी सेटल करनी? सर्विसेज दे के, एक प्रीपेड रेंट भी होता है, उसे रिसीवेबल तो नहीं कहते हैं, एसेट तो है लेकिन प्रीपेड एसेट, वो क्या चीज है? राइट टू रिसीव सर्विसेज है, राइट टू रिसीव कैश तो नहीं। एज इट इज नाइदर receivable nor payable। पहले ये हजम करने बात, ठीक है मेरी, ये गलत है। ये रिसीवेबल पेबल क्या होता है? कैश रिसीव होना है, पैसे देने, ओनली इट इज ओनली एन, या ब्रैकेट में लिखा है, इट इज ओनली एन ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सर्विसेज एज इट इज नाइदर रिसीवेबल और पेएबल, बाकी मैंने ब्रैकेट में लिखा, देयरफॉर नो रीमेजरमेंट on the basis of
चेंज फॉरेक्स रेट्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। It is a एक बड़ा लिखना पड़ेगा। It is a non-monetary item। कौन सी आइटम लिखी है मैंने? असल में मॉनेटरी आइटम वर्ड है रिसीवेबल्स के लिए, रिसीवेबल पेबल जिनमें कैश इन्वॉल्व, कैश भी है, बैंक भी है, रिसीवेबल भी है, पेबल भी है। अगर आपके डॉलर पड़े हो बैंक में, रिसीवेबल है, पेबल, ये भी तसली सोचो रिसीवेबल है सर। आप जब बैंक जाएंगे, बैंक का राइट, बैंक की ऑब्लिगेशन आपको पैसे वापस करें। हम समझते हमारा बैंक से कैसे रिसीवेबल हो सकता है, तो हमारी तो पैसे। अब अगर रेट चेंज हो रहा है तो पॉम पे फर्क पड़ेगा। तो डॉलर है सर आपके डॉलर, और अगर आपने किसी के डॉलर वापस करने हैं, डॉलर में लाइबिलिटी है आपकी, तो आपकी लाइबिलिटी में फर्क पड़ेगा। तो मॉनेटरी आइटम्स होती हैं असल में रिसीवेबल्स एंड पेबल्स। अगर आपके पास अपनी जेब में डॉलर पड़े, और फॉर एग्जांपल जेब में ही पड़े बैलेंस शीट डेट आ गई, आपने लिया था 150 का, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया 140 का, आप करेंगे कुछ रीमैयर में? अगर आप रुपये में हिसाब किताब कर रहे होंगे कि मेरे कितने रुपए थे, अगर तो आप अकाउंटिंग ही कर रहे हैं डॉलर से, ठीक है, लेकिन अगर आप रुपीज में अपनी अकाउंटिंग कर रहे थे कि मेरे पास कितने रुपए थे, तो क्या उन रुपयों पे फर्क आया पड़े? अगर फॉर एग्जांपल डॉलर रेट हो 150 रुपया, और आप वो डॉलर्स उठा के ले जाएं किसी मनी एक्सचेंजर के पास और उसको डॉलर पकड़ा दें, तो क्या आपके पास, आपका ये राइट होगा कि आपको उसके अगेंस्ट 150 रुपया मिला? यस सर, नहीं पकड़ाते मिलेंगे, आपका राइट होगा सर, वो 150 रुपया देगी, नहीं वो 140 बाद में देगा। अब जब 140 हो गए तब आपका क्या राइट रह जाएगा? तो फर्क पड़ता है, डॉलर आपकी जेब में हो, आपके बैंक अकाउंट में हो, ये रिसीवेबल सॉर्ट हो। और अगर डॉलर्स में लोन लिया हो, पेबल। अगर डेटर्स हो फॉरेन करेंसी में, अगर क्रेडिटर्स हो फॉरेन करेंसी में, ये सारी आइटम्स है। नॉन मॉनेटरी कौन सी? नहीं, नॉन मॉनेटरी ये है जो मॉनेटरी नहीं है, सबसे बेहतरीन डेफिनेशन ये। नॉन मॉनेटरी कौन सी है? जो मॉनेटरी नहीं है। तो आप सोच लेते हैं, आपने फिक्स एसेट लिया फॉरेन करेंसी में, आप यकीन है, एक तो उसके पैसे हैं, अगर वो पैसे नहीं दिए तो वो लाइबिलिटी पे फर्क पड़ेगा डॉलर एक्सचेंज रेट में। लेकिन वो जो प्लांट है खरीद लिया आपने, मशीनरी खरीद ली, वो भी फॉरेन करेंसी में अगर चेंज है तो चेंज आएगा उसमें, उसको कभी रीमेजर किया हमने। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन मॉडल हो तो फेयर वैल्यू भी एक दफा जिस डेट पे रिवैल्यूएशन हो रही है, उस डेट पे अगर फेयर वैल्यू हमें फॉरेन करेंसी में गिवन है, तो उसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्सचेंज रेट यूज करेंगे। अगर स्टॉक पड़ा, अब स्टॉक खरीद लिए, नहीं लोअर ऑफ कॉस्ट एनआर नहीं, अब तो पाकिस्तान में अल्लाह करे पड़ा। हाँ, अगर स्टॉक किसी डॉलर में किसी और मुल्क में रखवाया हो, लेकिन स्टॉक होपफुली अपने अब अपने पास रखा हो, तो उसकी लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी अगर, तो हाँ ये हो सकता है कि आपने अगर पाकिस्तान से बाहर में बेचना, तो एनआरवी का फार्मूला क्या है? अब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस अगर बाहर वाली है, फॉर एग्जांपल आपका अमेरिका बेचने का प्लान है, और वो डॉलर्स में अगर होगी प्राइस, फिर उसे यकीन आप रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। और अगर एक्सपेंस भी बाहरी है, कमीशन भी कोई बाहरी देना है, तो वो ठीक है, उसकी मेजरमेंट करते हुए आप एनआरवी निकालते हुए फॉरेन एक्सचेंज रेट्स कंसिडर कर लेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर एनआरवी लोअर है, सॉरी कॉस्ट लोअर है, तो आप ऐसे तो उसकी लॉस की एंट्री करेंगे, फिर वो तो लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे रखना ना आपने। हाँ, अगर एनआरवी लोअर होगी फिर क्या करेंगे?
फिर लोअर पे लेंगे, वो रिक्वायरमेंट आई इसको कि अगर उस लोअर के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स की, तो वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये पेज नंबर है 34 वॉल्यूम 1 में। नॉन मॉनेटरी आइटम्स में किसे कह रहा हूँ, अदर देन मॉनेटरी, और इसकी एग्जांपल्स के तौर पे 3-4 बोल रहा हूँ, 3 बल्कि एक क्या बोला मैंने, नहीं बताऊँ तो सर आपने कौन सा सुना आपसे? सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं है मेरे से ही है, ये क्वेश्चन मेरे से ये प्लांट मशीनरी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में सोचो, इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में सोचो, वो क्या चीज है? अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीद ली, स्टॉक पड़ा, अर्न इनकम है, प्रीपेड रेंट है, ये सब क्या है? अदर देन मॉनेटरी, अदर देन नॉन मॉनेटरी। उस जमाने में बहस हमारी ये होती रहती थी कि क्या ये रिसीवेबल है या पेएबल। तो अगर रिसीवेबल या पेएबल है तो ठीक है, अदर देन सॉरी मॉनेटरी आइटम्स। तो मेरा ख्याल में तो अगर आपको याद आ जाए तो हमने एक वर्ड डिसाइड किया था, रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स। नहीं, मैंने एक वर्ड डिसाइड किया था, रिसीवेबल्स और पेएबल्स। पेज नंबर सर जी, अब जो डेफिनेटली लोग इंटरेस्टेड हैं, होपफुली कोई एक तो है, उसका नाम जवाब होना चाहिए। एक तो मैंने पेज नंबर 34 देखा, उसके दरमियान में एक टेबल है, समरी ऑफ रूल्स फॉर मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स। देन साथ ही आपने पेज नंबर 35 पे क्वेश्चन देखना ना, जिसमें अगर आपको प्लांट याद आ जाए, मैंने प्लांट बताया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तो बात अब मेरे ख्याल इस वक्त हो गई है। मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रीमेजर किए सर, मैंने किया है सर, मैंने किया है, मेरे पे एग्जाम में मैंने किया। मॉनेटरी आइटम है, नॉन मॉनेटरी आइटम है, मॉनेटरी आइटम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो मैंने उसे रीमेजर किए, लेकिन मैंने उसे क्यों रीमेजर किया? वो रिवैल्यूएशन मॉडल की वजह से। अगर कॉस्ट मॉडल होता तो मैं बिल्कुल इस तरफ ना जाता। देन उसके बाद एक क्वेश्चन कम से कम और आप देख लीजिएगा, जिसमें मेरा ख्याल 100 बचा हुआ था, दैट वाज पेज नंबर 52। पेज 52 पे, ये पेज 35 पे भी क्वेश्चन है, एग्जांपल है, इम्पेयरमेंट। इसमें मेरा ख्याल है पेज 52 पे दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1 एंड 2। एक में इसमें फिक्स एसेट भी आ जाएगा, कॉस्ट मॉडल, और दूसरे में इन्वेंट्री बची हुई है 20%, क्वेश्चन 1 एंड 2। अब इस तरह की जो मैं बातें करता हूँ कि ये आप रिवाइज कीजिएगा, इट डजंट रियली मींस कि अब आप ये चीजें दोबारा सॉल्व करें, लेकिन इट डेफिनेटली मींस कि इन सब चीजों को एक नजर सही तरह कम से कम आंसर सामने रख के जरूर देखा जाए। तो खास तौर पे ये मैं क्वेश्चन इस वक्त बता रहा हूँ, ये किस लिए बता रहा हूँ, नहीं ये वाली चीज खास तौर पे बीच में। तो इसमें अगर हम नॉन मॉनेटरी की चंद एक एग्जांपल्स लिख लें, कौन कौन सी हो गई? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी मेरे ख्याल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, स्टॉक, इन सबको लिखते हुए ये जहन में रखें कि क्या फॉरेन एक्सचेंज रेट बदलने से इन एसेट्स पे फर्क पड़ना चाहिए? डेफिनेटली किस वक्त यकीनन आपने इन्हें फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड कर लिया होगा, जब आपने इनको खरीदा होगा। लेकिन उसके बाद अगर कॉस्ट मॉडल है, खासतौर पर ये 3 के एंगल से मैंने बात की है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल्स और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अगर कॉस्ट मॉडल है तो देन द एक्सचेंज रेट विल नॉट अफेक्ट द रीमेजरमेंट ऑफ दीज आइटम्स। लेकिन अगर यही जो 3 आइटम्स हैं रिवैल्यूएशन मॉडल पे हैं, तो उनकी रिवैल्यूएशन के वक्त पसंद करेंगे। ठीक है, और डेफिनेटली जो अभी बात हुई है स्टॉक की, अगर एनआरवी है और एनआरवी आपकी कोई फॉरेन करेंसी में फॉर एग्जांपल अपनी चीजें बाहर बेचनी है, तो वो भी एनआरवी की वर्किंग में हो सकती है।
उसके बाद ये दो चीजें कम से कम मौजूद में रखें, ये जो बात हुई अभी अर्न इनकम, अर्न इनकम एंड प्रीपेड रेंट। अगर एडवांस दिया हो किसी सप्लायर को, एडवांस तो सप्लायर प्रीपेड है, बल्कि प्रीपेड रेंट करने, प्रीपेड एक्सपेंस करना। अगर एडवांस तो सप्लायर वो क्या चीज है? नहीं, एसेट तो है, एसेट तो है, एसेट में तो कोई शक नहीं है। आपका क्या राइट है कि आपको कैश वापस मिले या चीजें मिले? गुड्स रिसीव करनी है। अगर एडवांस फ्रॉम कस्टमर है तो ये आपकी लायबिलिटी तो है, लेकिन ये लायबिलिटी सेटल कैसे होनी? कैश में सेटल नहीं होनी। अगर एक्सचेंज रेट्स फर्क हो जाए तो इससे आपकी लायबिलिटी की सेटलमेंट पे इशू नहीं आएगा। मतलब एक्सचेंज रेट विल नॉट चेंज योर लायबिलिटी। अपनी चीजें देनी है, पैसे नहीं देने। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ, ये किसकी एग्जांपल्स है? बेस्ट वर्ड वही है, रिसीवेबल्स और पेएबल्स रीमेजर होते हैं। ठीक है, तो फाइनली बता दें, ये जो हम बात कर रहे थे अर्न रेंटल इनकम की, इसकी रीमेजरमेंट क्यों ना करें? नहीं, नो मॉनेटरी मेरा ख्याल सही जवाब नहीं है, ये ना रिसीवेबल है ना पेएबल। बाकी ठीक है, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जी एनी अदर कंफ्यूजन? लेकिन बारह ये रिवाइज जरूर करना, मुझे कल फिर बताइएगा कि कोई इशू रह जाए। ठीक है, बता दें कि और इस पॉइंट में एंट्री रहेगी। स्पीड अप हो सेकंड नहीं बताता, नंबर 2 शुरू करें। बच्चे बिजी हैं सर, उनको टाइम नहीं है। ये उनके साथ जुल्म है कि क्लास हो रही है, इनको टाइम है क्लास का। ये सारी पॉइंट नंबर 2 इक्विटी इन्वेस्टमेंट, पेज नंबर 165 साथ रखना। कोई एक आध निकाल के रख ले पेज नंबर 165। ये सारी स्टोरी चला रहे सर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कौन कौन सी? इन्वेस्टमेंट ए एंड इन्वेस्टमेंट बी। इन्वेस्टमेंट A is designated as favorable profit and loss, and investment B game on sir 1st May 17 double entry. Investment A debit, investment A debit, कैश क्रेडिट कितने से? हिम्मत सही, हिम्मत सही। 165 पेज फाइनल कर दें आज। 100 क्या है ये? 100 क्या है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लस करवा दें। क्लासिफाइड एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री करा दें। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट बाय फाइनल कर लीजिए सर पेज। नेक्स्ट डेट सर। सेम डेट में इन्वेस्टमेंट बी भी तो, इन्वेस्टमेंट बी की वर्किंग करा दें। इन्वेस्टमेंट बी डेबिट, इन्वेस्टमेंट बी डेबिट, कैश क्रेडिट, टाइम बचाया जा सकता है, सीधी फिगर है 153। ठीक है, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस, क्लासिफाइड एट, सॉरी क्लासिफाइड एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंपनीज में। जी आगे से 1 अक्टूबर
अक्टूबर है मेरा ख्याल, चलो अक्टूबर 17 को क्या हुआ जी, कोई डेट स्पेसिफाइड नहीं। डिविडेंड अर्न हुआ है, वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सही एंट्री बताएं। अर्न हुआ, डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट, कितने से इकट्ठा कर लेते हैं 9 12, क्या इसने इनकम ही बनना, इफेक्टिव रेट या एक्चुअल रेट। नो इशू है, 165 पेज देख रहे हैं आप, नो इशू है, नो स्टोरी है सर, डिविडेंड का कोई रेट स्पेसिफाइड नहीं है, ये डिक्लेयर होगा तो रेट पता चलेगा, नो इशू ऑफ इट। 21 मींस 12 + 9, डिक्लेयर होगा तो फिर पता चलेगा इसका रेट क्या है। वो सारी इफेक्टिव और एक्चुअल रेट की बहस कब है, कब है सर, जब डेट इंस्ट्रूमेंट हो यार। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, क्या फर्क है, ये शेयर है वो लोन है, ये शेयर है वो लोन है, लोन पे इंटरेस्ट है। नेक्स्ट है नवंबर 17, नवंबर 17, नवंबर 17 को क्या हुआ, डिस्पोजल हुई है सर, डिस्पोजल हो गई है जी, कितने कितने परसेंट, 20 30%, अलग अलग करवा देंगे, इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं तो सही फाइनल करना। डिस्पोजल की एंट्री हो रही है सर, कैश डेबिट कितना, ए लदा करो, ए लदा करो, बी लदा करो, लेकिन 23 मिलते हुए एक मसला है, क्या डिस्पोजल पे खर्चा भी है, 55 जेन में लाए, मेरा ख्याल है कि हम ऐसे कर लेते थे, नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स कितना आना है कितना जाना है, 23 आना है, 2% जाना है, तो नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, नहीं आता ना, आना चाहिए सर, अगर डिस्पोजल अकाउंट में बनाना, कैश वाली एंट्री बना, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, और अगर फॉर एग्जांपल पैसे जाने भी हो तो यकीनन डेबिट साइड पे भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन नेट भी लिखा जाता था, तो 98% कहां से बीच में आ गया, तो 22.54 इज कैश है जी, बात पूरी सुनो। इन्वेस्टमेंट कौन सी क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट एक क्रेडिट, कितना 20% किसका, 100 पे रिकॉर्ड हुई थी 20%, 20 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बता दो, बस फिर यही है, क्या है, नहीं मतलब यही है ना, बस दो चीजें, कैश मिला है, इन्वेस्टमेंट की गई है, गेन है लॉस है, 165 पे जाए, फिर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है, गेन सीधा कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना 2.54 लिखे, दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज, रहने जी डी नवंबर 17, कैश डेबिट कितना 50 इंटू 98%, 49, इन्वेस्टमेंट बी बताएं कितने से क्रेडिट कर रहे हैं, नहीं 30% अमाउंट तो नहीं है, जिस तरह एग्जामिनर ने सवाल उठा दिया, आपने मेरे पे सवाल उठा दिया, कौन से फिगर उठा रहे हैं, 153 क्यों उठा रहे हैं सर,
वही कॉस्ट है सर, सही उठा रहा है सर, वही उसमें कैपिटलाइज हुई है ना, वही कॉस्ट है इनटू 30% इज इक्वल टू 45.9 और ये भी ढूंढना जरा सेकंड कॉलम, पेज 165 है सेकंड कॉलम, ये प्रॉफिट लॉस में जाना ठीक है। जो रीमेजरमेंट का गेन लॉस है वो अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में जाना, जरा पढ़ लें जरा सेकंड कॉलम। तो अभी रीमेजरमेंट की तो शायद बारी नहीं आई, बैलेंसिंग फिगर से नहीं पढ़ना, एनी कंफ्यूजन इसको ना, ये जो 49 हो रहा है, ये 22.54 हो रहा है, ठीक है प्लीज, 98% जो कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन मैडम, आगे चलें, जानना स्टूडेंट्स ओके यहाँ तक? जी सर, इन्वेस्टमेंट ए की वर्किंग शुरू, कैरिंग अमाउंट बता दो। क्या करने लगे इस दिन हम 31 दिसंबर 17 पे क्या करने लगे? रिवैल्यूएशन, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ये तो इन्वेस्टमेंट भेज दी, अब किसी से करनी है? अरे मैंने सर सवाल में लिखा भी हो, मैंने कहा पता नहीं लिखा हुआ। 100 माइनस ऐसे ही नहीं है, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट से रिवैल्यू ही नहीं है। फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू ये मैंने कल भी बात की थी बीच में, दोबारा सुनिएगा काइंडली जरा। एग्जामिनर ने ना आपको तंग करने के लिए बहुत कुछ करना है और हमें तंग होने के लिए तैयार हरगिज नहीं होना। लिखा calculating gain loss in IFRS 9 as carrying amount less cost किधर है वाला कॉन्सेप्ट सब इम्पेयर खत्म, रिकवरेबल अमाउंट फिर लेस कॉस्ट चलती इन्हें वो देखने को इसको एक मेजरमेंट करनी है तो सिंपल अमाउंट फिर वैल्यू सिस्टम पे आज 16 में कैरिंग अमाउंट ऑफ फिर वैल्यू नहीं करते आईए से 38 से मिला वहां पे कैरिंग अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू नहीं कंपेयर होना है। हाँ बस वहां फेयर वैल्यू कहां से नहीं विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट, तो फेयर वैल्यू से लेस कॉस्ट टू सेल वाला कांसेप्ट सिर्फ इंपेयरमेंट में है और अगर रिकवरेबल अमाउंट की मतलब डेफिनेटली जी वासी के लिए जी ऑनेस्ट से वासी होगी बात हो रही है कि फेयर वैल्यू में सामने रखना था प्लीज 105 और 130 के सामने 2.1 लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिस्पोजल, इसका सिंपली मीनिंग अगर लिखना चाहे तो लिखने सेलिंग एक्सपेंसेस है, लेकिन कब होंगे सेलिंग एक्सपेंसेस? तो जब सेल करेंगे करके सेल इसे करके नहीं ग्रीन ईयर कर रहे हैं देखिए फिर लोग लेस करने का कंसेप्ट ना ये है। आगे 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 ना ये से आगे आगे कहाँ है कहाँ है सॉरी मेरा नेट मसला था
कुछ clarification की जरूरत है सर प्लीज ऑनेस्टली? आवाज ठीक पड़े सर? ये बड़ा आवाज ठीक है सर? ये सारी बात तो ये हो रही थी कि फेयर वैल्यू जो है लेट्स काइंडली डिवाइस आईएस 16 में कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू कंपेयर होती है विदाउट डिडक्टिंग एनी नहीं मेरा ये वर्ड तो चलो ठीक है यहाँ लिखा हुआ विदाउट डिडक्टिंग एनी सेलिंग एक्सपेंसेस। हम बेचेंगे तो क्या पैसे मिलेंगे विदाउट डिडक्टिंग एनी, कि बेचने पे खर्चा कितना आएगा। आईएएस 38 में भी ऐसे ही है, आईएफआरएस 9 में भी सिमिलरली क्या बात होती है, ये फेयर वैल्यू से कंपेयर करना। सिर्फ किस जगह डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ सेल भी लेस होती है। इम्पेयरमेंट में जब आप रिकवरेबल अमाउंट एस्टिमेट करते हैं तो उस वक्त फिर फेयर वैल्यू और फेयर वैल्यू कॉस्ट ऑफ सेल और वैल्यू यूज का कंपैरिजन करके हायर ऑफ आता है। ठीक है, मींस टू से इस केस में जिस वापस जो डिस्पोजल की एंट्रीज नहीं है ऊपर, ये जो डिस्पोजल की एंट्रीज, यकीन अगर डिस्पोजल करते हुए कोई एक्चुअली सेलिंग एक्सपेंसेस है वो तो नेट होने हैं, आपको पैसे मिल भी रहे हैं जा भी रहे हैं, लेकिन जिस वक्त आप रिवैल्यूएशन कर रहे हैं पे सिंपली रीमेजरमेंट कर रहे हैं तो आपने किस चीज को बेस बनाना, फेयर वैल्यू को बेस बनाना विदाउट कंसिडरिंग एनी सेलिंग एक्सपेंसेस। इसके ऊपर फाइनली लिखी है बात की, ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिस्पोजल लिखा हुआ इसका फाइनली क्या डिसाइडेड है बोल देंगे प्लीज। किस वक्त इग्नोर करेंगे और डेफिनेटली कब कंसिडर करेंगे, रीमेजर करते हुए इग्नोर करेंगे, अगर डिस्पोजल होगी तो वो डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। डिस्पोजल का गेन लॉस है तो गेन लॉस निकाल एज इन आई 16 कर लें 38 कर लें, लेकिन बहरहाल आई एस 36 इम्पेयरमेंट उसमें है डेफिनेटली कॉन्सेप्ट। ठीक है प्लीज चलो फाइनल करवा दें इसके चेक्स भी करते हैं। जर्नलिस्ट फ्रेंड्स, अब आवाज ठीक है, आवाज का मसला तो नहीं है इसमें, फाइनली बता दें ताकि क्वेश्चन करना है। ये सारी डिफरेंस है एंट्री पर, डबल एंट्री से इन्वेस्टमेंट एड है, इन्वेस्टमेंट एड है एंड फेयर वैल्यू गेन है। ये इन्वेस्टमेंट ए जो प्रॉफिट लॉस वाली है, इन्वेस्टमेंट ए डेबिट फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस 25 वाइंड अप करें से 31 दिसंबर 2017। इन्वेस्टमेंट बी कैरिंग अमाउंट इज 107.1 हो जाना 153 माइनस 45.9 वाली इन्वेस्टमेंट, या सिंपली 70% भी कर सकते हैं उसको। 107.1 फेयर वैल्यू 130 22.9 डबल एंट्री इन्वेस्टमेंट बी डेबिट फेयर वैल्यू गेन अदर कंप्रीहेंसिव इनकम क्रेडिट। चलिए सर बाइंड अप करवाएं बी पार्ट।
एक्सट्रैक्ट्स बनाने, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स बनाने। Kangaroo Limited statement of financial position, as on 31st December 2017, rupees in millions. ये है नॉन करंट एसेट्स। अब ये ढूंढने करनी क्या क्या आना है, तरतीब में रखें जरा, तरतीब भी मरहल होनी चाहिए। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में मेरा ख्याल क्या ख्याल, करंट एसेट नॉन करंट एसेट, फाइनल फिगर्स बोलते रहे सर, ढूंढे प्री एंट्रीज देखें, फाइनल फिगर्स बोलते रहे। 290 डन है सर। इन्वेस्टमेंट पे जरा, नहीं इन्वेस्टमेंट ए जो है ना वो जरा ऊपर जाए जरा, क्लासिफाई हुई है प्रॉफिट एंड लॉस में। बेटा वो तो डिस्पोजल होगी तभी करना, रिटेन्ड अर्निंग्स में कब ट्रांसफर करेंगे, जब डिस्पोजल होगी। और हमारी जो डिस्पोजल है वो रीमेजरमेंट से पहले ही हो गई है। हमारी जो डिस्पोजल है इन्वेस्टमेंट बी वाली, उसका तो पहले कोई फेयर वैल्यू रिजर्व ही नहीं पड़ा हुआ था जिसमें रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर होना था, तो पहले ही डिस्पोज हो गई है और उसकी रीमेजरमेंट साल के एंड में हुई है, बल्कि उसकी तो हुई ही नहीं, वो तो पहले डिस्पोज ऑफ थी। तो यकीनन होना था अगर कोई इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाली होती और उसका कोई फेयर वैल्यू रिजर्व होता, तो फेयर वैल्यू रिजर्व फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर होना था एज पर पेज नंबर 165 सेकंड कॉलम। लेकिन हमारी जो डिस्पोजल है वो इस फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से पहले ही होगी, ये मींस रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स ही सिर्फ है। अब ये जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स है इनमें से फ्यूचर में अगर कोई डिस्पोजल होगी तो उससे रिलेटेड जितना फिर फेयर वैल्यू रिजर्व पड़ा होगा वो ट्रांसफर होगा। ठीक है जी सर। ये इन्वेस्टमेंट से जरा ऊपर जाए, इनके मेजरमेंट मेथड्स बताए थे, प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कहीं लिखा हुआ? ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में मेजर हो जाए, ये फिर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग होती हैं। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग अगर होती है ना तो फिर इन इन्वेस्टमेंट्स को आपने क्लासिफाई करना है करंट एसेट्स में, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग वाली जो होती है। हाँ जो हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म है वो नॉन करंट एसेट्स में। हाँ कभी कभी ये भी हो जाता है कि होती इन्वेस्टमेंट, दोबारा जाए पेज नंबर 165 पे या उससे पीछे फ्लोट चार्ट पे जाएगा, कभी कभी ये हो सकता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो और लेकिन उसे हमने रख प्रॉफिट एंड लॉस में लिया हो, तो वो अलाउड तो है उस केस में, तो डेफिनेटली फिर नॉन करंट एसेट्स में होना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए रखी हुई है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी प्रॉफिट लॉस में है और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो फिर इसे करंट एसेट्स में क्यों होना चाहिए, शॉर्ट टर्म में सेलिंग करनी है। तो अब यहाँ शायद एसेट लिखा तो नहीं हुआ, जरा क्वेश्चन देखा जरा, ये कोई एसेट मेरे ख्याल ये तो नहीं लिखा हुआ कि ये शॉर्ट टर्म होने की वजह से है या अदरवाइज हमने खुद डेजिग्नेट ही से किया है। तो मेरा ख्याल एक दफा जरा कम से कम ये प्रॉफिट लॉस वाली को करंट एसेट्स में इसलिए लिखना है, मेरा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ताकि जरा याद रह जाए बाद में रिवाइज करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बी को मैं नॉन करंट एसेट्स में क्यों लिख रहा हूँ, वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म ही होगी अगर वो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे। अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है देख लेना फ्लोट चार्ट में कह रहा था, अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है फिर तो ऑप्शन ही नहीं है, अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो ऑप्शन ही नहीं है, सवाए किस ऑप्शन के, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस। लेकिन अगर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म है तो चाहे तो इवन देन प्रॉफिट लॉस में भी ले जा सकते हैं, वरना इररिवोकेबली फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे भी ले जा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बी कहाँ लिखें, कितने पे लिखें, करंट एसेट्स में आ जाए। क्या अज्यूम करके इन्वेस्टमेंट बी को करंट एसेट्स में लिख रहा हूँ,
लेकिन क्या ये बी इवन देन के प्रॉफिट एंड लॉस मेथड पे है, लॉन्ग टर्म पर्पजेस के लिए हो सकती है अगर डेजिग्नेट कर लिया जाए एट इनिशियल रिकॉग्निशन। क्या हर इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस पे आ सकती है? चाहे वो डेट इंस्ट्रूमेंट हो या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो, हर आ सकता है, चाहे वो भी हो इधर हो। हाँ इररिवोकेबल है, वन टाइम डिसीजन है। हाँ मतलब हम शुरू में से डेजिग्नेट कर लें, नहीं वो तो अगर हम चाहें तो इधर डेजिग्नेट कर लें, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे रख लें, लेकिन चाहें तो उधर रख लें। लेकिन अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो उसके लिए चॉइस नहीं। ये फिगर बताएंगे 105। एनी कंफ्यूजन भाई? 12 जी जी। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग मेरा ख्याल करंट एसेट्स में होनी चाहिए, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, रखा ही बेचने के लिए, तो लॉन्ग टर्म का प्लान ही नहीं है। अब लॉन्ग टर्म मीन्स होता है फिर कम से कम 1 साल से ज्यादा ही तो लॉन्ग टर्म कहता है ना। तो अगर बेचने का प्लान है ट्रेडिंग के लिए तो फिर करंट एसेट्स में होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वर्ड्स है जी सर। एनी अदर करंट एसेट? डिविडेंड रिसीवेबल, ट्वेंटी वन। चलते हैं भागते हैं। और कुछ इक्विटी में कोई एसेट, शेयर कैपिटल प्रीमियम, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, फेयर वैल्यू रिजर्व। हाँ जी फेयर वैल्यू रिजर्व ठीक है, इक्विटी लिखे। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स वाली बहस सुनिए, सही है। एक फेयर वैल्यू रिजर्व है, कंसल्टेट कीजिएगा तो ये फेयर वैल्यू रिजर्व फिर कहाँ से आया ये भी रिवाइज कर लीजिएगा तो तो ढूंढे कोई है कोई फेयर वैल्यू रिजर्व टाइप की, किस एंट्री में, किस एंट्री में? ये आखिरी एंट्री देखो, आखिरी एंट्री, आखिरी एंट्री सर, क्या आखिरी एंट्री? सही जरा अपने जहन में कंप्लीट करें बात को, स्टोरी पूरी करें। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है में जरा, ये 22.9 अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में नजर आएगा आपको, लेकिन फिर चेंजेस इन इक्विटी में जाएगा फेयर वैल्यू रिजर्व के कॉलम में, तो 22.9 का फिर जो बैलेंस होगा वो चेंजेस इन इक्विटी से होता होता आखिरकार स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ जाएगा। अगर वो ओपनिंग होता तो ये फिर ऐड होके क्लोजिंग यहाँ आना था। तो व्हाट इज द ओपनिंग फेयर वैल्यू रिजर्व, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यही जो है फॉर द ईयर ये फिर क्लोजिंग के तौर पे आ जाएगा। सही आ जाता है यार 22.9। लाइबिलिटीज में कौन सी करंट ही मेरा ख्याल है, क्या चीज में आती है करंट लाइबिलिटीज में? मैंने तो कहा रेंट लाइबिलिटी नहीं है। पेएबल इन कैश नहीं है, पेएबल इन सर्विसेज सॉर्ट ऑफ है, मतलब पेएबल सर्विसेज देनी है रादर देन कैश। एंड रेंट इनकम कितना बार लाना? 17.6। प्रॉफिट लॉस एक्सट्रैक्ट भी बना, मेरा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाना है, बना ले आइडिया होना चाहिए सही। कैंगरू लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income for the year ended
31 दिसंबर 2017 सर। चले सर प्रॉफिट लॉस में काफी कुछ है। अब ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हम लिख रहे हैं, इसके दो हिस्से होंगे। पहले आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के एंगल से देखना, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को छोड़ना। जोड़ने की एंट्रीज काफी सारी हैं। अदर इनकम, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में शायद कुछ नहीं है। अदर इनकम में काफी कुछ निकल आना, ढूंढते जाए कहीं। तरतीब से चले, रेंट इनकम शायद, रेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाए, एक एक करके पूरा करवा देना। 8.8 नहीं, डिविडेंड से पहले यार इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पूरा करें। फेयर वैल्यू गेन, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला, फेयर वैल्यू गेन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उधर ही पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पूरी करें। हाँ जी, फॉरेक्स लॉस भी है, उधर ही रहे। 18.3 अदर इनकम से नीचे चले जाते ना, तो चार पांच लाइनें रखने नीचे। एक्सपेंसेस ठीक है, अदर इनकम मतलब डेफिनेटली यू हैव चॉइस के पहले अदर इनकम पूरी करना। तो अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देख लें कौन से करवाना। एक्सपेंसेस में आ जाए, फॉरेक्स लॉस कौन सा वाला, 1.5 जो पेबल पे हुआ था। एक्सपेंसेस और हाँ जी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नहीं वो पूरा हो गया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फाइनल होगी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट हुई है इन्वेस्टमेंट बी 2 में। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस 2 है। डिविडेंड इनकम आ गई अदर इनकम में। ट्वेंटी वन आगे मत। डिस्पोजल के दो गेन है, डिस्पोजल गेन, गेन ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल है, ये फिगर सिर्फ बताइए। 2.54 एंड 3.1 टोटल हो गया। अलग लिख सकते हैं 5.64। मायूस जाने दे गुस्सा यार, 5.69 यार तो दाग ली है। अच्छा अपना कर रहा, तो हमारा अपना भी तो यही आ रहा है, कोई और सवाल तो नहीं कर रहा। अच्छा जी सर, और सुनाओ। रिवैल्यूएशन गेन वो हो गया मतलब। अच्छा फेयर वैल्यू गेन ऑफ इन्वेस्टमेंट है कितना, 25। ठीक है जी, और नहीं कुछ। ये अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम चलाओ, अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम। ये फेयर वैल्यू गेन किसका, फेयर वैल्यू गेन इन्वेस्टमेंट बी 22.9। और सर जिधर तक तकरीबन हम पहुंच गए ना सर, अब कंसोलिडेशन मेरे ख्याल में अब तकरीबन वाइंड अप है। ये 12 वगैरह भी वाइंड अप हो जाना हो गया हुआ, बल्कि ये बीच में बस IFRS 9 रह गया हुआ था। तो मेरी तरफ अब एक तो क्वेश्चन है मिंट वाला, कहाँ तक पहुंचा, शुरू ही नहीं हुआ। कंसोलिडेशन वाला जो मैंने पिछले दिनों में दिया था, कौन सा क्या नाम था,
ये जो मैंने कहा था, हाँ जी, सैटरडे को मंजिल वगैरह, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि इस मैक्सिमम अगले 2-3 दिनों में कोशिश करें ये खत्म हो जाएगा। तो कौन सा था ये क्वेश्चन? मंजिल समथिंग, नहीं वो मेरा ख्याल है मिंट वाला फिर भी थोड़ा सा शायद इशू हो, ये मंजिल तो कोई इशू नहीं है। एक क्वेश्चन और रख लें, लेकिन आज चले रहने दें, आज इस तरह करें, बल्कि अभी तो 15 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े, फिर एंड में बताता हूँ। पेज 181 पे क्वेश्चन नंबर 1 पहले शुरू करना। ओमेगा लिमिटेड सर मिल गया, चलिए सर स्पीड अप होगा। ओमेगा लिमिटेड is incorporated and listed in Pakistan on 1st May 12. It acquired 20,000 ordinary shares. अब ये शेयर्स वाली बहस भी तो फाइनल कर लेंगे। In Al-Wadi Limited, a Dubai-based company, at a cost of Arab Emirates dirham 2,40,000, which was equivalent to 6 million rupees. Face value of the shares is 10 Arab Emirates dirham. OIL intends to hold the shares to avail benefit of regular dividends and capital gain. Investment in equity instrument है या debt instrument है? For long term है या for short term है? क्या even then fair value through profit and loss पे आया जा सकता है? लेकिन next line, the company has irrevocably opted for fair value through other comprehensive income. क्या इधर जाया जा सकता था? मतलब डिविडेंड्स और कैपिटल गेन कमाने का प्लान है, तो अवेल रखने का प्लान है, डिविडेंड्स कमाने का प्लान है, और जब कभी जरूरत पड़ी बेच के पैसे कमाने का भी प्लान तो है। लेकिन आपको ये लाइन पढ़ के महसूस होगा कि सुकून है, जल्दी कोई नहीं, ठीक है, वो तो स्पेकुलेशन होती है ना, डिविडेंड्स का प्लान ही नहीं है, फटाफट प्राइस बढ़े जितनी जल्दी हो सके। ऑन 1 जून 30 AWL, अब तक कंसिडर डेट कीजिएगा, AWL साहब कौन है? नहीं, अलवादी कौन है जिसके शेयर्स खरीदे गए थे मेरा ख्याल, was acquired by हिलाल लिमिटेड, उसको खरीद लिया है हिलाल लिमिटेड ने, which issued 3 shares in HL in exchange for every 4 shares held in AWL. 344 किसने किसको दे के ये शेयर्स खरीद लिए? हिलाल लिमिटेड ने अपने 3 शेयर्स इशू करके AWL के 4 शेयर्स ले, हर 3 के बदले, हर 3 अपने शेयर्स के अगेंस्ट, बल्कि शायद उलट बोलना चाहिए, हर 4 के अगेंस्ट, AWL के 4 के अगेंस्ट अपने 3 इशू कर देंगे, अपने 3 इशू किए उसके 4 के अगेंस्ट। Other relevant information is as under: final dividend declared, received on 31st March 13, कैश डिविडेंड भी है, बोनस शेयर्स भी हैं, परसेंटेज दी हुई। फाइनल कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड रिसीव्ड ऑन 10th April 14, फेयर वैल्यू पर शेयर एज एट 31st December 12, अरब एमिरेट्स दिरहम में पहले 13, 14, फिर 1 जून पे HL की गेम शुरू हो गई, और 31 दिसंबर पे फिर अरब एमिरेट्स दिरहम सिर्फ HL में दिए हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ थी? लेकिन अलवादी कंपनी का बेचारी का क्या हुआ? उसको एक्वायर कर लिया हिलाल लिमिटेड ने। एक्सचेंज रेट्स पे सभी गिवन है, जनरल एंट्रीज करनी है अपने OIL की बुक्स में 31 December 12 और 13 की। बिस्मिल्लाह पढ़।
जनरल एंट्री से फर्स्ट पे डेट बताए, किसकी बुक सैंपल के पहले नाम लिखो। हाँ जी, ओमेगा लिमिटेड की बुक्स में एंट्री, ओएल ओमेगा लिमिटेड जनरल एंट्रीज 2 साल की है, पहला साल बन जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12। फर्स्ट डेट से 1 मई 12। स्टार्ट से किस करेंसी में काउंटिंग करनी है? फंक्शनल करेंसी के रुपीज है सर। वजह 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 और मैं लगा लिमिटेड पाकिस्तानी कंपनी से पहली एंट्री से इन्वेस्टमेंट एपेट कैश क्रेडिट कैश बैंक क्रेडिट कितने 6 मिलियन रुपीज कन्वर्ट हुए हैं। कन्वर्ट हुए में सर नेक्स्ट डेट सर सोच के पढ़ें डाटा। डेट्स पढ़े सर जी, सही डेट्स पढ़े। 31 दिसंबर 12 वर्किंग हो रही है। नो डिविडेंड इन दिस ईयर यार, डिविडेंड 13 में है, यकीनन 14 में भी है। 12 के एंड पे आ जाएं, अभी AWL ही की गेम चल रही है। ऐसे ही है सर, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होनी है, इन्वेस्टमेंट किस पे रिकॉर्ड हो गई है, किस मेथड के मुताबिक वर्किंग हो रही है, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। ऐसे ही सर, क्या करना है फिर 12 में सिंपली क्या रह गया, कैरिंग अमाउंट बता दें 6 मिलियन, फेयर वैल्यू बनवा दें पहले बनवा दें। कितने शेयर से हमारे पास, कंसंट्रेट करते फुल। एक शेयर की अरब एमिरेट्स दिरहम में मार्केट वैल्यू क्या है 13, मार्केट वैल्यू 13 मिल गई सबको। और एक दिरहम कितने रुपए का था 25 रुपए का। किस डेट की बात हो रही है 31 दिसंबर 12। आंसर 6.5 मिलियन मिल गया सब कुछ। डिफरेंस डबल एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू गेन OCI क्रेडिट 5 लाख। सारा डाटा ज्यूम हो गया है। मायूं की खैर है, मायूं तुम एक ही तो बच्चा पढ़ने वाला, उसने भी छोड़ा हुआ। कौन सा साल खत्म हो गया है? फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13। सितंबर 13, 31 मार्च ईयर एंडेड नहीं, 31 दिसंबर तो है ना। फर्स्ट डेट सर 31 मार्च 13। ये जो AWL को HL ने एक्वायर किया इसकी डेट क्या है? तो अभी वो गेम नहीं है, जब आएगी तो देख लेंगे। 31 मार्च को क्यों रोका आपने?
डिविडेंड डिक्लेयर होके रिसीव भी हो गया है, क्या एक ही एंट्री कर ले? एंट्री बोले फाइनल, कैश डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट, डिक्लेयर्ड एंड रिसीव्ड इकट्ठा ही लिखा हुआ है। अब डेफिनेटली रिसीवेबल बना के रिसीव लिखा जा सकता है। कितना डिविडेंड अगर परसेंटेज में दिया हो तो नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल से रेट मल्टीप्लाई होता है, लेकिन प्लीज रिमेंबर हम 100% डिविडेंड रिकॉर्ड करने की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम AWL के अकाउंटेंट नहीं है इस वक्त। हम किसके अकाउंटेंट बने हुए हैं? ओमेगा के पास शेयर्स कितने थे, एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू ढूंढें, 10 किस करेंसी में है, मल्टीप्लाई बाय 10 करके मैंने क्या निकाला, फॉरेन करेंसी में नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। जरा 15% ढूंढे डिविडेंड रेट, यहां तक क्या आया, फॉरेन करेंसी में डिविडेंड की फिगर आ गई, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय एक्सचेंज रेट क्यों करें, रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए। दोबारा उन्होंने 20,000 किया है, हम ये सारे शेयर्स नहीं है, हम सिर्फ अपने से इंटरेस्टेड है। उसने डेफिनेटली क्या होगा, सारे शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट, उसने सारा डिक्लेयर किया होगा। हमारा हिस्सा 20,000 शेयर्स के अगेंस्ट मिलेगा, तो 20,000 क्या रिपीट कर देना, नंबर ऑफ शेयर्स 10 क्या है, नॉमिनल वैल्यू बट इन फॉरेन करेंसी है, इनको मैंने पहले 15% डिविडेंड रेट लगा के फॉरेन करेंसी में डिविडेंड निकाल लिया और मल्टीप्लाई बाय 26.5 फॉरेन एक्सचेंज रेट लगा के डिविडेंड की अमाउंट लिख ली है। डन है प्लीज। और कैश सीधा डेबिट क्यों कर दिए, नहीं डिक्लेयर भी हुआ है रिसीव भी हुआ है, डिक्लेयर होके ही रिसीव हो गया, तो सेम डेट्स पे शायद इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैंने कैश डेबिट कर दिया। हजम है सर, हजम है सर। चलें सर, इससे आगे जो बातें वो फिर जरा कुछ और एडवांस बातें, तो ये बहस कल यहीं से शुरू करेंगे। आपने काइंडली आज क्या करना है, हाँ जी, सबसे पहले तो काइंडली वो छोटा सा काम करना IAS 21 वाला, वो जो मैंने बताया आपको। देन इसके बाद आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 2 की है, इसको जरा एक नजर रिवाइज करके एक छोटा सा क्वेश्चन जरा इसी का रख लें आज IFRS 9 का, नहीं पिछला मेरा ख्याल आज मैं चारों के रहने दें, IFRS 9 और IAS 21 पूरा फाइनल कर लें। पिछला आप डेफिनेटली अगर अल्लाह का शुक्र है वो बहुत से सवाल जो IFRS 9 IAS 38 की वजह से रुके हुए थे वो खत्म हो गए, तो वो अब मेरी तो बल्कि सजेशन ये है कि अगले एक आध दिन के बाद अब टेस्ट स्टार्ट हो सकते हैं, कंसोलिडेशन के कंप्रीहेंसिव टेस्ट हो सकते हैं। वो उस जमाने में डेफिनेटली हमने अभी सारी बातें नहीं की थी, कंसोलिडेशन IAS 12 IAS 38 इन चीजों के आराम से टेस्ट स्टार्ट हो सकते हैं जिसमें आप हाईली इंटरेस्टेड है। एक छोटा सा क्वेश्चन IFRS 9 का जरा रखना, जरा थ्योरेटिकल सा, पेज नंबर ढूंढे 494, पेज है 494, इसके एंड पे क्वेश्चन नंबर 3 है। डेफिनेटली इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर बड़ा सिंपली आप खुद ही फाइनल कर लेंगे, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन इसका आंसर पढ़ना जरूर है, बाद में इसका आंसर पढ़ना जरूर है। इसमें सारी जो ऑप्शंस डिस्कस हुई होंगी वो आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो मेरी तरफ से किस सीक्वेंस में क्या क्या है, नंबर 1 तो मैंने आपको IAS 21 के कुछ पेजेस किए हैं, फिर नंबर 2 में ये जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने पहले किए, एक नजर उसको रिवाइज करना बनता है। देन फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मेरा नहीं ख्याल अगर आप सीरियसली टाइम लगाएंगे इट शुड नॉट टेक मोर देन 1 आवर और एंड इट शुड नॉट टेक लेस देन 1 आवर एज वेल, वरना ये हो चुका है। अल्लाह हाफिज। ये मिस्टर हम आप कल का क्लास का टाइम जरा बता दें मुझे भी यार, मैं अक्सर गलत टाइम पे आ जाता हूँ। कौन से 8 दो दफा बजते हैं एक दिन में। अल्लाह हाफिज।